We shall take half an hour now. Now, we are going to take up the half an hour discussion by Shri MVVS Murthy. Shri Murthy. Rural electrification. Mr. Chairman, sir, this house has agitated on 4th December this year regarding a question on rural electrification during 9th plan. Please, order please. This is a very, very important subject. I think the honorable members in the House will indulge themselves. Those who are interested in the welfare of the people living in the rural areas, they are mostly poor people. The honorable minister is a very energetic minister, and that's why he is having this energy portfolio. In 9th plan period, it is expected that 40,000 megawatts will be added. To be precise, 40,245 megawatts to be created. So far, it is not even 50%. There is only another 2 years to go. How the minister will keep up the 9th plan target of creation of energy? That is my number one point. The other thing is, this is a very poor state of affairs in the country. As per my friend Raghuvanshi Prasad ji will not be angry on me if I say, Dainik Jagaran dated 20th/11/2000 stated, if this present situation continues, to electrify Bihar, all the villages, 700 years will take. 700 years. 700 years, yes. And West Bengal, 66 years. UP, 33 years, it is better. These views have been expressed, nothing short of a parliamentary committee appointed on this, an expert parliamentary committee appointed on this. So if this is the state of affairs, where are we leading in the energy sector? Mr. Minister, sir, I seek your indulgence. Yes. He will reply. Sir, 700 years, he said, to electrify, rural electrification. So Babu, this is not possible. See, the total electrification requirement of the country today is approximately 1 lakh megawatts creation as on 2000. If that is the question, by the time you complete your 9th plan, your requirements will again improve. Today, you will be shocked to note the per capita consumption of energy. Energy is the source of wealth. Energy is only to move the wheels of progress. Otherwise, there is no progress. All the while in this country, we are dealing and we are also feeling that it is not a commodity to sell. It is a free commodity. It can be used by anybody. Free. Government should provide free everybody. It's not a commodity. But electricity is a commodity. It is a manufacturing activity. There are so many processes are involved in it. Unless you create energy, you cannot achieve your objectives. Then how can you say that it should be given free everywhere?
The House is divided on that point. So this is also a point to be pondered. If our country really if you are really having sympathy towards the poor people, to the rural electrification, many of us, we live in urban areas and we don't bother about it. Our internet will work and electricity. So we know the world. We are all interested in the rural electrification. If that is the commitment, the whole House should go with that commitment. And if we should resolve today that how to achieve our objective to create 1 lakh megawatts of power, and how we should treat the electricity as a commodity, then only these, if you take into consideration these two issues only, then the problem will be solved. Otherwise, it will be much more, it will be complicated. And at one time, the Honorable Minister, I know, he says in his reply, this is a state subject, the states have to look after, they have to create energy, and that energy is in their purview, then we are giving whatever assistance they wanted. It's not that. India is one. India is the country. India lives in the villages. And we should think as one. And we should not segregate. Bihar is different, Andhra Pradesh is different, West Bengal is different, Tamil Nadu is different. The unity process will further, bondage will improve. No, sir. No, I don't agree with you. Please. Rudy, sir. Rudy is my good friend. I don't agree with you. So if all this is happening, the per capita consumption, sir, I won't take more than another 1-2 minutes, because I started only 2 minutes back. So I need another 2 minutes, that's all, to highlight these points, so that this is an important subject, everybody will share my ideas and views. The per capita consumption, I will give you some of my time to you. The per capita consumption in India is the per capita consumption. The per capita consumption in our country is ridiculously low, 338 units per head per year. 338. China, at least we should always compare ourselves with China. China is one of the developing countries. They are also coming up along with us. They are also progressing. They are also a lot of work they are doing for the rural areas. Their consumption, per capita consumption of units is 800, sir. 800. In a developed country, where you go to that stage, and sometimes we feel so depressed, we can never reach a developed country. Not only in our lifetime, rather after 50 years also. USA's per capita consumption is 13,000 units. 13,000 units USA. India is 338. Very bad state of affairs, I do agree. But whether the Honorable Minister has taken any concrete steps towards this direction, he owes an answer to this nation. Otherwise, this problem will be further complicated, and the energy audit, unless there is an energy audit, he has introduced a bill. I will come to that. Energy conservation bill introduced in this House on 24/2/2000. This is a very good bill. We should strictly implement all the conditions and clauses that are existing in that bill. Energy audit. Then the energy audit says Bureau of Energy Efficiency. The Bureau of Energy Efficiency is to be created that has to monitor all the aspects. Government of India to lay down energy conservation standards. This is Government of India. You say, yeah, this energy should be used like this. The conservation, how you have to save like this. This conservation standards scrupulously. Everybody should follow. Unless then only, I have seen in some of the countries, like a progressive country like in Japan, they don't put off air conditioning. Yet it is that if the weather conditions is 22 to 24 degrees Celsius, they open their small doors and shut down the energies.
And so that is the energy that what I am telling you, if you save energy, you can use it for your rural electrification. If you waste energy here, how can you use it for rural electrification? So it is our duty, primary duty, to think country as a whole, not differently. But some states boast that they have already villages are electrified. It is also a misnomer, because only revenue villages they have covered electricity. That will have a half a dozen hamlets. The hamlets have no. Not all hamlets. Mr. Murthy. I shall be. Mr. Murthy. I shall be very happy. Mr. Murthy. Yes, sir. You know the rules, but I have to say that. Yes, sir. We have to dispose of this. Yes, I am asking directly the question. Half an hour. So I am asking directly the question now. I see this is because of the 6:20. I am asking. Okay, this is only to ask the clarification. इसके बाद the extension of time for other. No, he said so. If you don't want, I don't mind. Say, shall I stop it? It is 6 o'clock. I have already get permission from the house. मैंने पहले सदन की सहमति चाहिए थी कि हम ये बिल स्वीकृत कर दें, उसके बाद जितना और समय लगेगा उतना आधे घंटे में हम समय दे देंगे। मैं सब 6:20 तक हम समय पूरा होता है। Please. Yes, sir. So I appeal to the Honorable Minister, and I also directly ask him whether the energy audit will be introduced. And all the energy is to be metered in the country. So it should be treated as a commodity. A commodity is to be sold. It cannot be freely enjoyed. If these systems are put into condition, our rural electrification program, at least by the end of 10th plan, we will achieve. Otherwise, we will never achieve. I would request the Minister to answer about these things. Sir. Conclude, please. Thank you very much. I have already done. सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और ऑनरेबल स्पीकर को भी धन्यवाद देता हूं और मिस्टर मूर्ति को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज इस सब्जेक्ट पे एक चिंता छेड़ी और उसके लिए आज सदन ने अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया और मुझे भी एक मौका मिला कि इस बारे में सरकार की जो भूमिका है उसके बारे में मैं पूरे सदन का अवगत करूं। सर, ये बात सही है कि हमारी स्थिति 9वीं पंचवार्षिक योजना में काफी इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में काफी खराब हुई है। सर, 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हम करीबन 5 साल में 1,10,000 से भी ज्यादा विलेज को इलेक्ट्रीफाई करने का काम कर रहे थे। पिछले सालों में खास करके 8वीं और 9वीं पंचवार्षिक योजना में, 8वीं पंचवार्षिक योजना में और कम हुआ और 9वीं पंचवार्षिक योजना में उससे भी कम हुआ। सर, साथ साथ में ये बात भी सही है कि जिसके बारे में आपने हमारे सामने वो फिगर रखे कि 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हमारा जनरेशन का भी टारगेट करीबन हम टारगेट के नजदीक जाने की संभावना रखते थे, लेकिन 8वीं पंचवार्षिक योजना में और 9वीं पंचवार्षिक योजना जो अभी तक पूरी नहीं हुई, हमारा जो टारगेट था उससे बिल्कुल नजदीक जाने का मौका भी हमें नहीं मिला। और इसीलिए ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ हमारे सामने जो समस्या है सर नो इंटरप्शन सर, इसलिए ये ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए मैंने पिछले समय लोकसभा ने जब ये मौका दिया कि जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि यही स्थिति यदि चलती रहेगी तो बिहार जैसे राज्य को पूरे ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए 800 से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। और इसलिए हमें चिंतित है, यह हमारे कोई गर्व का विषय नहीं। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में भी आपने कहा, तो मैं मानता हूं ये सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति यदि चलती रहेगी तो शायद जो लक्ष्य हमने हमारे सामने रखा था उसके करीब हम कभी नहीं जा सकेंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है
कि बहुत ही जल्द हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि जिसके सहायता से, अभी वित्त मंत्री जी भी आ गए हैं, उनकी सहायता से, सही माने में कहें तो उनकी सहायता से ही, वित्तीय सहायता से और उनकी खुद की निजी सहायता से भी हम ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को आगे बढ़ाने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बनाए जा रहे हैं। सर, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने, जैसे मिस्टर मूर्ति जी ने कहा, और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सदन की ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि बिजली ऐसी एक कमोडिटी है जो मुफ्त नहीं दी जा सकती। वो बिजली कमोडिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए, जनरेट करने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो पैसे यदि हम सही माने में वापस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं दे सकेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो स्टेट गवर्नमेंट आगे आने वाले दिनों में बिजली निर्माण करने के कार्य में काफी विफल रहेंगे। सर, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो यही पार्लियामेंट ने पास किया था, वो 1983 में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में कहा था कि कम से कम 3% जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट डिविडेंड की तरफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिलना चाहिए, और उसके बाद में जो प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट के बाद जो भी टैरिफ तय करना हो, टैरिफ तय करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यदि हम देखेंगे तो ये साल में पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के देश के हमने एवरेज निकालेंगे तो 18% से भी ज्यादा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय, और इसी से साथ ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला जुड़ा हुआ है। सर, ग्रामीण विद्युतीकरण ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हीं की जिम्मेदारी पूरी करने में उनको जो दिक्कत आती है, ये ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने पहले से ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से और प्लान आउटले देने से भी हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने की कोशिश की, और इसमें काफी हद तक, जैसे मैंने कहा, 7वीं पंचवार्षिक योजना तक हम काफी सफल रहे। 8वीं और 9वीं पंचवार्षिक योजना में जिन राज्यों ने आज तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वहां जो कम चल रहा है, उन्हीं राज्यों ने वहां से फंड्स जिस तरीके से लेने की जरूरत है वो लेने में शायद वो विफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट बेरिंग फंड्स है। सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने को जो पैसा चाहते हैं, जो पूंजी चाहती है, वो पूंजी लेने के लिए मार्केट से बोरो करती है, और जो मार्केट से बोरो करने के बाद वो पैसे वापस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को देती है। यदि वही पैसा वापस नहीं मिलेगा तो शायद आगे आने वाले दिनों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को जिन राज्यों को भी देने की जरूरत है उनको भी देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए डिफॉल्ट करना मैं मानता हूं अन्य राज्यों के ऊपर और अपने खुद के राज्यों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसीलिए जो राज्यों ने आज तक पैसे नहीं दिए उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और बिहार के साथ भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं। उनके मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया दिल्ली आने के लिए, आपको भी मैंने विनती की थी जितने जल्द आ सके उतने जल्द हम बैठ के बिहार के रीशेड्यूलिंग करने के लिए क्या करने की जरूरत है उसके ऊपर भी हम जरूर ध्यान देंगे। हमारे लिए चिंता का विषय है कि बिहार के सभी देहातों को जल्द से जल्द बिजली कैसे दी जाए। पश्चिम बंगाल के लिए भी यही स्थिति है। आज ही मुझे पता था कि आज मैंने दूसरा सवाल हमारे वासुदेव आचार्य जी के पूछा था, उसको आंसर करना था। इसके लिए मैंने वेस्ट बंगाल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ही फिगर्स मंगवाए और उन्हीं को पूछा था कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि जिसके आधार से आप इस तरह का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाएंगे। मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को भी हम जितनी भी पूंजी की जरूरत होगी हम जरूर देंगे। उसके एनर्जी मिनिस्टर जब मुझे मिले थे तो मैंने उनको विनती की है कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन करे कि जिसकी सहायता से दोबारा पूंजी देने का काम हम शुरू कर सके। तो इसीलिए मिस्टर मूर्ति ने और जो कुछ सवाल पूछे उसके बारे में भी बिल्कुल मैं सहमत हूं। सर, ये बात सही है कि आज हमारी जो डेफिनेशन है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की, उसकी बहुत मिसलीडिंग डेफिनेशन है। उससे हम ये बिल्कुल दावे से नहीं कह सकते कि पूरे विलेज में पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सर, आज 31% ही हाउस होल्ड्स में, रूरल हाउस होल्ड्स में ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है। इसलिए जो आप उत्तर प्रदेश की बात करें उससे भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसीलिए हमको आगे आने वाले दिनों में टारगेट रखना होगा, पहले तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का, बाद में बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन का भी टारगेट रखना होगा। आज प्लानिंग कमीशन के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा बस्तियां ऐसी है कि जहां एक सवाल है इसमें कि जिन राज्यों में विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है कि ये पैसा हमने खा लिया, पैसा बर्बाद हो गया, विद्युत बोर्ड ने स्वीकार किया है, वहां क्या कार्रवाई होगी? तो सर, जैसे मैं कह रहा था कि 4 लाख से ज्यादा बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं, वहां भी विद्युतीकरण का काम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हम जो ज्यादा धन देते हैं उस धन का इस्तेमाल
जिस काम के लिए दिया जाता है उसी के लिए होने की जरूरत है। नहीं तो यदि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और भी धन देते रहेगा, प्लान से भी आजकल ज्यादा पैसे जा रहे हैं। और जैसे आप कह रहे थे, हमने इसी साल से एक नई पद्धति की शुरुआत की, क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन से बोरो करने के बाद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा वापस करने में जो दिक्कत आती है, इसलिए हमने ये तय किया कि डायरेक्ट प्लान से ही उनको पैसे दिए जाएंगे। और इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो बिल में जो प्रोविजन किया था, फाइनेंस बिल में, बजट में, वो पैसे डायरेक्ट स्टेट्स को ही दिए जा रहे हैं कि इसके लिए कि उसका इस्तेमाल सीधी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए किया जा सके। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ कि जब तक ये देने वाले पूंजी उसी काम के लिए नहीं इस्तेमाल की जाएगी, तब तक हम इस काम में नो प्लीज, ये आप और डिस्कशन में आप कैसे पूछेंगे ये क्लैरिफिकेशन? नो प्लीज, इतने जगह में हम लोगों ने 18,000 गांव में बिजली लगाने का तय किया था। मिस्टर चौबे, बिजली नहीं लगी और रिकॉर्ड में आप कैसे पूछेंगे अपन और डिस्कशन में एक क्लैरिफिकेशन? मिस्टर अखिलेश जी ने पूछा है कि एमपी लैंड से जो धन दिया जाता है उसका इस्तेमाल किस तरह से उसी चुनाव क्षेत्र में जहां वो पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरह से वो पूंजी को लगाया जा सके। मैं खुद यूपी स्टेट से बात करके इस मामले को हल करूंगा और ये भी हम चिंता करेंगे कि जहां किस तरह से हम से कोई सहयोग मिल नहीं रहा है। मैं अरुण सर जी को बताया है, हम लोग ने पूंजी जो फिक्स किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, वो हमारा सेंट्रल आइटम नहीं मिल रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से भी जो बिजली बोर्ड है वो कहते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ चलेंगे अभी। और इसीलिए मैंने कहा कि हम इसमें जो पूरी पॉलिसी है उस पॉलिसी को ही ठीक तरह से देख रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उससे भी मैंने बातचीत की है और इस पूरे विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के जिसमें पॉलिसी में क्या चेंज करने की जरूरत है, जो लोन कंपोनेंट है उसमें किस तरह से चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट, इंटरेस्ट सब्सिडी देने की जरूरत है कि नहीं, इसी सभी सवालों के ऊपर हम सोच रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम जल्दी उसका हल निकाल सकेंगे। हमारे मित्र राजीव प्रताप रूडी ने पूछा था कि डी इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है। सर, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कई देहातों में जहां पहले विद्युतीकरण हुआ था, आज वो विद्युतीकरण के कक्षा से बाहर चले गए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए उसका जो इन्वेस्टिगेशन मेरे प्रीडिसेसर मिस्टर मोहन कुमार मंगलम, मिस्टर रंगा कुमार मंगलम जी ने किया था, उसी को भी हम दोबारा देखेंगे। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चिंता है, जो वीपी सिंह जी ने कहा, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरा सदन इस बात के लिए चिंतित है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए एक नया लेजिस्लेशन भी शायद लाना होगा और इस लेजिस्लेशन का भी सपोर्ट, जिसको पावर रिफॉर्म्स के साथ साथ हम जुड़ के ही विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सुधार सकते हैं, उसमें भी सदन इसी तरह से मुझे पूरी सहायता करेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आपने जो चिंता प्रकट की है, उसी सभी चिंताओं को दूर करने का काम भी हमारी सरकार जरूर करेगी।